Mm. Okay, so Deepa, in the first part we have very well learned the amendments, the important amendments of the leases, and in the second Mm. part, अच्छा अब जो फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो वो तीन क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, तो तीन चार जितने क्वेश्चन सॉल्व Mm. किए थे, those were not the Mm. questions of your institute or any official material as such. ठीक है, Mm. वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के हिसाब से और समझाने के हिसाब से थे, जिनके बेसिस पे we can happily solve these particular ICAI sum because these are ultimately your institute ka sum. Mm. Okay, keeping that in mind, let's get started. Start reading question number one. Lesson L leases retail space to lessee Z and classifies the lease as an operating lease. अच्छा रुक जा, आगे पढ़ो. ये लेसर पे चला गया. लेट मी टेक द सम्स फर्स्ट which are only based on लेसी because हम लोगों ने लेसी को लेके बहुत सारी बातें सीखी हैं. हम लोग लेसर पे लास्ट में. या read question number 4. Retailer Q leases a store in a large retail mall. The rent payable is 1 lakh per month. As a result of COVID-19 pandemic, Q agrees with the lessor to defer the rent originally due in the month April 2020 to June 2020. ठीक है, डेफर मतलब डेफर भी कंसेशन के डेफिनेशन में आता है. अप्रैल में Yes. जून 3 महीने का रेंट वो डेफर हाँ. कर रहा है. आगे. Hmm. Hmm. As part of this agreement, the rent for the period Jan 2021 to March 2021 will be increased by 1,10,000 per month, which मतलब 1 लाख compare. माफ कर 1 लाख को डेफर करने के बदले 1,10,000 की वसूली ले रहा है जैन से लेके मार्च 21 में उन 3 महीने के लिए. तो कहने से 3 लाख माफ करके 3,30,000 वसूली कर रहा है. बट कहना स्टिल से सब्सटेंशियली रेंट सेम ही है बिकॉज अपन ने कल बात किया था टाइम वैल्यू ऑफ हाँ. मनी के हिसाब से. हाँ. जब 9 महीने का टाइम दे रहा है बंदा तो यार टाइम भी तो लेगा ना. 1 लाख का बेसिक इंटरेस्ट भी लेगा, 10,000 बन जाएगा नॉर्मल इंटरेस्ट रहेगा. तो इन दैट केस वी कैन वेरी वेल से सब्सटेंशियली सेम या उससे कम का ही है, ज्यादा तो नहीं है बाबा. बोल रहा है वैसा रेंट डेफिनेटली इज एलिजिबल फॉर मटेरियल एक्सपीडियंट इफ अदर कंडीशंस आर मेट. अदर खुद ही बोल दिया मेट कर दिया, तो सिर्फ ये इस कंडीशन की बात कर रहा था, ये भी मेट हो गई है फाइनली. इसका मतलब यस. अब एग्जाम में कभी अगर ऐसा क्वेश्चन बाय चांस आ जाए 5 मार्क के लिए, जो कि आ सकता है इन 116, यू नीड टू राइट और फुल कंडीशंस पहले तो इस लिखने के बाद में लिख देना है हेंस क्यू कंसीडर्स अप्लाइंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. अगर इन कंडीशंस को तुझे रिलेट करना कभी ना जमे क्वेश्चन से, तो कंडीशंस बाय डिफॉल्ट राइट एज इट इज as you have learned in the conditions. नीचे लिख दो since all the above conditions are satisfied hence Q can consider applying practical. एकदम simple and sorted. So done with question number 4. Yes, read this. Lessee P operates a chain of restaurants and leases several outlets. As a result of COVID-19 pandemic, P agrees a rent deferral with the lessor. Under the terms of the rent deferral, rent originally due in period July 2020 to December 2020 will be added to the rent due in the period July 21 to December 2021. Whether rent deferral is eligible for practical experience if the other conditions are met. Again, Yes. 1 satisfied है, 2 भी हाँ, satisfied to है, be और satisfied, ये जून 3 भी 21 तक ही है तो 3 भी satisfied है, और 4 तो टर्म्स हाँ. में जो भी नहीं satisfied है, तो yes he can be practical experience. Yes. Good. Lessee T leases office building from a lessor. As a result of the COVID-19 pandemic in September 2020,
T agrees a rent concession with the lessor, under which the monthly rent will be reduced by 50% per month for 12 months commencing 1st October 2020. Okay, have a look. 1 October 20 से लेके 12 months, तो कैन आई से अक्टूबर से लेके सितंबर 21 तक दे रही है. कैन आई से Hmm. कंसेशन एक्सीड हो गया जून जून 21 से. Yes. सिंपल है कि एक कंडीशन तो मीट हो नहीं रहा है, तो ऑल फोर तो मतलब मीट होगा नहीं. नहीं होगा. दैट केस नॉट एलिजिबल. Yes. नॉट एलिजिबल. यस, आगे. A lessee is granted a rent concession by the lessor whereby the lease payments for the period April 2020 to June 2020 are deferred. 3 months are added to the end of the lease term at the same monthly rent, and the lessee repays the deferred rent during those additional months. The rent concession is direct consequence of COVID-19, whether the rent deferral is eligible for practical experience. ओके, देखिए यहाँ थोड़ा सा स्लाइटली अलग है. एक Hmm. जैसे कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो पेंडेमिक के चक्कर में. Hmm. नंबर 2 क्या था? नंबर 2 था ज्यादा नहीं लेना चाहिए. हाँ, तो सेटिस्फाइड हो गया, वो भी सेम अमाउंट का रेंट ले रहा है बाद में Hmm. 3 महीने के लिए. Hmm. नंबर 3 था Hmm. जून 21 तक का होना चाहिए, जून जून 20 21 तक तक ही है. का. सेटिस्फाइड है. 4 था Hmm. कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए. नाउ चेंज नहीं होना चाहिए. 4th में इफ यू फील एंड इफ यू सी, a normal layman person might feel कि terms conditions change हो रहे हैं because originally the lease was for X period, now it has Hmm. turned to X plus 3 months का period, Hmm. क्योंकि वो किसी existing term के अंदर नहीं ले रहा, वो खत्म होने के बाद additional 3 महीने के अंदर ले रहा. Now the standard simply says कि बाबा अगर वो जो additional 3 महीना extend हो रहा है, वो कहीं ना कहीं प्योरली पैंडेमिक के चक्कर में हो रहा है. देयर कैन बी अ चांस जहाँ पे ओनर बोले कि बाबा 3 महीना तेरा बिजनेस नहीं हुआ, 3 महीना मेरा भी बिजनेस नहीं हुआ, कुछ रेंट वेंट मिला नहीं है, तो 3 महीना में कम ढूंढता हूँ नए टैलेंट को, तो 3 महीना और रह जा रहा. वेल विच मीन्स कि जितना रेंट डेफर किया था एग्जैक्टली उतना ही पीरियड एक्सटेंड हो रहा है, तो इट कॉन्सिक्वेंटली मेक्स यू फील दैट ओके पैंडेमिक के चक्कर में हुआ एक्सटेंशन. बट सपोज इफ समथिंग या समवेयर मेंशन दे मेंशन इन क्वेश्चन 3 महीने का रेंट डेफर किया और बदले में 6 महीना एक्सटेंशन कर लिया, और वो 6 महीने में किसी 3 महीने में रेंट दे रहा है, तो बाबा वो टर्म्स कंडीशन चेंज मान लिया जाएगा, बिकॉज वो 6 महीना जो एक्सटेंड हुआ है तो डायरेक्टली नहीं पैंडेमिक के चक्कर में लग रहा. देयर कैन बी समथिंग एल्स एज वेल. तो इन दिस केस कंडीशन नंबर 4 इज सेटिस्फाइड एंड वी कैन हैप्पीली से यस. देख यहाँ पे लिखा एक चीज. फर्स्टली द रिवाइज एक सेकंड. ओके. Firstly, the revised consideration in the lease is substantially the same as the original. कोई दिक्कत नहीं है. Rent concession only reduces this payment due to there is कोई दिक्कत नहीं है. There is a change in lease term. 3 महीने से extend हो गया. Now there is no explicit guidance on what is considered substantive. ये अपने first time पे बात किया था initially. Substantive change नहीं होना चाहिए. Judgment will need to be applied considering both the qualitative and quantitative factors. The lessee assesses that 3 months extension at the end of the lease term is substantially the same lease payment would not constitute a substantive change. Hence, condition is satisfied हो गया since rent concession is a direct consequence of COVID-19 and 3 conditions are satisfied. The lessee concludes that rent concession eligible for सिंपल जो हमने डिस्कस किया वही वहाँ पे लिखा है अच्छी भाषा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. यस, पढ़ो आगे. Lessee Z entered into a lease contract with lessor L to lease 1,500 square meter of retail space for 5. Done. Lessee Z entered into a lease contract with lessor L to lease 1,500 square kilometer of retail space for 5 years. The lease commenced on 1st April 2018.
and the rental payments are 1 lakh payable quarterly in advance on 1st April, 1st July, 1st October, and 1st Jan. What do you have? Hmm. Z's incremental borrowing rate at commencement of the lease is 5%. Assume that the interest rate implicit in lease cannot be readily determined. There are no initial direct costs. Lease incentives are dismantling costs. ठीक है, ये और कुछ भी एडिशनल कॉस्ट नहीं है, इसका मतलब ये जो इनिशियली एंट्री मारा होगा वो जो लीज Hmm. सॉरी सीजीयू नहीं, सीजीयू नहीं, क्या तुम लोग बोलते हो उसको, आरओयू एसेट, हाँ, वो जो ROU आरओयू to lease liability. टू लीज लायबिलिटी होगा, दोनों में अमाउंट सेम होगा बिकॉज ये कोई डायरेक्ट कॉस्ट या लीज इंसेंटिव कुछ है नहीं as such. ठीक है, आगे। Z's business is severely impacted by the COVID-19 pandemic, and L and Z negotiate a rent concession. On June 2020, L agrees to provide Z with an unconditional rent concession that allows Z to forego payment of its rent due on 1st July. That फर्स्ट is, जुलाई को L कौन सा रेंट forgives ड्यू था? फर्स्ट जुलाई को कौन सा रेंट ड्यू था जो वो वेव्ड ऑफ कर रहा है? जुलाई को वही जो इंस्टॉलमेंट में क्वार्टरली वाला पे कर रहा है। तो कौन से महीने का रेंट ड्यू था फर्स्ट जुलाई को? अच्छा, पता तो चलना चाहिए ना ढक्कन, हाँ हाँ कौन सी समझ माफी गया। हो रही है? हाँ हाँ, हाँ बताओ। अप्रैल मई जून। अप्रैल में जून का माफ कर रहा है फर्स्ट जुलाई को। मतलब क्वेश्चन तुमसे नहीं नहीं, वेट करने की एडवांस तो में रीड करते देगा हो ना, ना? एडवांस में। हाँ? एडवांस में, हाँ समझ गया जुलाई अगस्त सितंबर का। ऐसा लग रहा है तुम्हारा सिर्फ शरीर यहाँ पे है। कौन सा माफ कर रहा है वो? जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, ठीक है, आगे। L forgives Z the rent payment of 1 lakh due on 1st July. What will be the accounting treatment in the books of lessee for rent concession, assuming that it is eligible for practical expedient? Okay, now this such case is a sort of variable lease payments, क्योंकि आपका अमाउंट आप जो दे रहे हो वो आप एज एन एडवांस देते हो, ना कि एज एन एरियस। एंड आई एम लुक द आंसर डायरेक्टली। Z determines that the rent concession is eligible for the estimate, ठीक है। Applying the practical expedient, Z should account for the forgiveness of rent as a negative variable lease payment. The rent concession is unconditional, so even that triggers the variable lease payment is the agreement between Z and L for the rent concession on equal those and these. Therefore, Z accounts for the rent concession as a negative variable lease payment on 1st June. Okay. Assume that there are no other changes to the lease. Z continues to use the retail space and right of use asset is not impaired. The lease accounting entries will be as follows. Recognize the rent concession as a variable lease payment in profit and loss. That is, record a debit to the lease liability and corresponding credit in the income statement. Okay. क्या एंट्री मार दोगे तुम? लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू P&L, जैसे कि अपन ने सीखा है अभी तक, करेक्ट है? Continue to accrue interest on the lease liability at the unchanged incremental borrowing rate, that is 5%. Is recorded debit to interest expense and corresponding credit to lease liability. जैसे अपन करते हैं वही करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। After accounting for the impact of rent concession, the lease liability represents the present value of all future owing to L. Discounted at the unchanged, बट हम कौन सी रेट लेते हैं? इंसेप्शन रेट वाली रेट देते हैं।
Z is effectively decreased the portion of the lease liability that has been distinguished by the forgiveness of the quarterly lease loan due in July. In addition, Z continues to depreciate carrying value of right of asset as it is he was doing it earlier without any changes. So this is your entry what we used to pass. Slightly हल्का फुल्का different, but although वही 4 conditions के बेसिस पे allow किया और हम लोगों ने ये चीज कल भी बात किया था. अब अगर तुमको उस मेथड से भी जाना है तो भी फंडा बहुत सिंपल है. अपन हिसाब किताब कब कर रहे हैं? जून में हिसाब कर रहे हैं. जून में ही मालूम पड़ गया है कि मेरे को जुलाई में कुछ पैसा नहीं देना है. राइट है ना? कब मालूम पड़ा है मेरे को? 1 जून को मालूम पड़ा है. तो ठीक है, जुलाई वाला जो पैसा देना है वो नहीं देना है, तुम लिजिबिलिटी कैंसिल कर दिया. अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पैसा ऐसा नहीं है कि बहुत महीने बाद दे के पीछे लेके आना है. Still, if you calculate all these liabilities का present value, you will again get the same answer जैसे अपन ने कुछ सम्स में कल किया था जहाँ पे आंसर्स सेम आ रहे थे. So anyway, just a theoretical question to rebrush the concepts, nothing new. अच्छा, ये ऑलरेडी कवर किया अपने जो अपने पढ़ाई किया था 116 का. इस क्वेश्चन को कुछ ऑलरेडी कवर थे, इसलिए मैंने यहाँ पे उसमें नोट डाल दिया है जहाँ जहाँ पे कवर में ऑलरेडी. Same is for next time also. Next case था modification that both increases and decreases the scope of lease already covered. वहाँ वो पीरियड था, पीरियड एज टर्म सब चेंज हो रहे हैं, अकॉर्डिंगली सब चीजें हो रही है, तो ये भी ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है. With this we have covered lessee वाला part. Okay. Now, before starting this new part of a lesson, let us discuss something about lesson. Lesson should not feel bad that we did discuss about it. Modifications in lesser's book. Now, as we have already discussed, क्या लेसर को एक्सपीडिएंट मिलता है? The answer is no. COVID-19 expedient not applicable or not available to lesser. So basically lessers करते क्या है? लेसर को दो तरह से किया जाता है. Lesser can either record a lease as finance lease or it can record a lease as other case. बताता हूँ ये क्या है. फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ finance lease. What can happen in finance lease is you need to ensure क्या एडिशनल ROU दिया है, राइट टू यूज एक्स्ट्रा दिया है, प्लस क्या उसके लिए स्टैंड अलोन प्राइस चार्ज किया है. If the answer to the above question is affirmative, you will record it as separate lease. We have already discussed this thing, so there should not be a major concern for that. ठीक है.
अगर एडिशनल आरओयू है एंड स्टैंड अलोन प्राइजेस है, भाई सिंपल सी कहानी है, पहले एक फ्लोर था अब एक फ्लोर और दे दिया है, तो एडिशनल आरओयू दे दिया है, या फिर और उसके साथ साथ में एक सेपरेट प्राइस है उसका, इंटरलिंकिंग प्राइस नहीं है, अलग सेपरेट प्राइस है, तो क्या होगा वो हमेशा मॉडिफिकेशन किस तरह का होगा, एक नया लीज ही रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, whereas in any other case, in any other ifs or buts, in any other ifs or buts, we need to ensure, हमको मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर भी, और नो सेपरेट लीज कैन बी रिकॉर्डेड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ if lessor does modification, तो और क्या मुझे बताना है यहाँ पे, lease which was classified as financial lease would be considered as operating lease if modified conditions were in existence on inception। सिंपल सी कहानी ना दीपक, कि भाई अगर कोई लीज ऐसा है लेसर ने जो क्या किया है, फाइनेंस लीज के हिसाब से क्लासिफाई किया था, लेकिन अब वो ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई हो सकता है कब, इफ मॉडिफाइड कंडीशंस, ये जो कंडीशंस है ये एग्जिस्ट करती थी इंसेप्शन पे। अब किस तरह की कंडीशन की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे कोई एसेट दिया लेसर ने, जिस एसेट की मैक्सिमम लाइफ 10 इयर्स की है और 8 साल के लिए लीज पे दे दिया, तो अपन जनरली कहते हैं मेजॉरिटी पार्ट कवर हो गया है, अपन कह देते हैं कि फाइनेंशियल लीज। डाउन द लाइन 1 ईयर लेटर देयर आर चांसेस कि बंदे ने बोला आज का लीज कैंसिल करना है, तो अल्टीमेटली उस केस में क्या होगा, यू नीड टू मॉडिफाई। ओके, अब ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, लेट मी रिकॉर्ड स्टेप्स फॉर व्हाट विल वी डू। नंबर 1, termination of existing lease। अच्छा, एग्जिस्टिंग लीज कौन सी थी, फाइनेंशियल लीज एंड क्रिएशन ऑफ न्यू लीज। लीज का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ऑपरेटिंग लीज, अरे कहाँ गया, ये रहा। बंदा चला रे ऑपरेटिंग लीज। तो सिंपल सी कहानी है भाई, पहले 8 साल के लिए लिया था तो फाइनेंशियल लीज मान लेते हैं, मेजॉरिटी पार्ट वो कवर कर रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो उसने बता दिया है कि भाई मेरे को सिर्फ 1 साल के लिए चाहिए बस, 1 साल बाद बताया कि 2 साल 1 साल और दूंगा, बाकी नहीं चाहिए मुझे, तो अब भाई 10 साल में से सिर्फ 3 साल का लीज रह जाएगा, तो बाबा गड़बड़ गड़बड़ हो गया, तो हम क्या बोल देंगे, एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लीज को टर्मिनेट कर देंगे
and will form a new contract, new lease contract, which would be but obvious कौन सा lease? Operating lease. Operating lease. Number 2, what entry will you pass? अच्छा, एंट्री की बात ऐसी है, जब जब तुमने उसको पहले फाइनेंशियल लीज माना था, तो कहना है ऐसे तुमने अपने एसेट को बुक से भगा दिया होगा, है ना? लेकिन अब एसेट शुड अगेन कम बैक. Yes. एसेट अकाउंट डेबिट. 2, लीज रिसीवेबल. Carrying value of lease receivable will be carrying value of underlying asset. ठीक है, एसेट वापस आ जाएगा अंदर, और जितना भी अब लीज रिसीवेबल बनता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्री पास आउट कर देंगे. जब कोई क्वेश्चन में आएगा तो बेटर समझ पाएगा, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू कि इफ एट ऑल देयर इज अ मॉडिफिकेशन, such modifications have to be recorded as per this method only. Now, ये तो क्या था, फाइनेंस लीज था और ऑपरेटिंग में कन्वर्ट हो गया, तो हमने इस तरह से मॉडिफाई किया. देयर कैन बी सिचुएशन वाइस वर्सा एज वेल, जहाँ पे हो सकता है पहले ऑपरेटिंग 2 साल के लिए लिया और बाद में बंदे ने बोला मुझे 6 साल के लिए और चाहिए, या बीच में बोला मैं तो 10 साल पूरा ले लूंगा उसी को, या कोई और कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया फाइनेंशियल लीज का, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर देंगे, वहाँ पे भी एग्जिस्टिंग जो लीज होगा वो कौन सा होगा, ऑपरेटिंग लीज होगा, वो कैंसिल हो जाएगा. और ऑपरेटिंग लीज के हिसाब से पता है, ऑपरेटिंग में तो अपन एक स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेंट को डेफर रेंट के हिसाब से यूज करते थे, सब करते थे, वो सब अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे एंड वी विल क्रिएट अ न्यू लीज व्हिच इज फाइनेंशियल लीज एंड विल पास अकॉर्डिंगली, जहाँ पे अब एसेट बुक से बाहर निकल जाएंगे. अच्छा, व्हाई वी क्रेडिटेड लीज रिसीवेबल? लीज रिसीवेबल अपन ने पहले डेबिट किया होगा जब फाइनेंशियल लीज के लिए दिया होगा. अब जितना पीरियड कम हो गया है बाबा, इट इज एज गुड एज कि अब वो पैसा नहीं मिलने वाला है, उतने से रिसीवेबल क्रेडिट कर दो. ठीक है, तो बस ये बताना था. आई गेस वी आर गुड टू गो. एंड यस, रीड क्वेश्चन नंबर 1. Lesser L leases retail space to lessee Z and classifies the lease as an operating lease. ठीक है, The lease includes fixed lease payment at 10,000 per month. ठीक है, 10,000 पर मंथ का पेमेंट आने वाला है. ठीक है, Due to COVID-19 pandemic, L and Z agrees on rent concession that allows Z to pay no rent in the period from July 2020 to September 2020, ओके, but to pay rent of 20,000 per month in the period from Jan 2021 to March 2021. There are no other changes to the lease. How this will be accounted for by lessor? ओके. सो दीपा क्या बात कर रहा है, अकाउंटेड बाय द लेसर, लेसर की बात कर रहा है. तो लेसर के पास डू ही हैव प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट का ऑप्शन? द आंसर इज नो. अच्छा, प्रेजेंट केस में पहले ऑपरेटिंग लीज आइडेंटिफाई किया एंड क्या कुछ ऐसा हुआ है कि फाइनेंशियल लीज बन गया? आंसर इज नो. ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, ऑपरेटिंग लीज ही है आज भी. लेकिन कहना है से दिस थिंग विल इम्पैक्ट few things. ऑल्दो ये ऑपरेटिंग लीज है, तो खाली क्या होगा, इसके वो जो अकाउंट्स क्रिएट होते थे डेफर वाले,
वो अकाउंट की एंट्रीज ऊपर नीचे हो जाएगी, क्योंकि हमने तो एक फ्लैट रेट डिसाइड किया होता है कि इतना ही पर मंथ हम लोग रेंट मानने वाले हैं। तो बेसिकली होगा क्या, सपोज इसने डिसाइड किया होगा, इसका रेंट आया होगा कि हम तो पर मंथ 15,000 रेंट मानने वाले हैं। तो हमेशा हो क्या रहा होगा, जब रेंट आया तो बैंक में कितना आया, 10,000 आया सपोज कर, और हमने क्या माना, हम रेंट कितना मानने वाले हैं, टू रेंट इनकम 15,000 मानने वाले हैं। तो जो डेफर में पैसा पड़ा होगा या जनरेट होगा वो यहाँ पे एडजस्ट हो रहा था, तो वो चीज का स्लाइड चेंज हो जाएगा, बट तरीका तो सब वही रहेगा, कोई नया लीज भी एंटर नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर। एल डिटरमाइंस दैट L determines that the reduction in lease payment in July 2020 and the proportion increase in Jan 21 to March 21 does not result in an overall change in the consideration for the lease. L does not account for the change as a lease modification. L continues to recognize operating lease income on straight line basis, which is representative of the pattern in which Z's benefit from the use of underlying asset is diminished. Simple है. Just because ये numerical नहीं है तो we are not in a position to go deep into it, but ये मैंने लाइन थी जो बताया, बस उसके हिसाब से अपन तो खाली एंट्री के हिसाब से वैसे ही काम करते थे। जितना अपन ने रेंट इनकम लेंगे पर मंथ माना उतना ही लेंगे, सिर्फ इतना होगा कि ये जो 3 महीने जब रेंट नहीं आएगा ना, तो बैंक में डेबिट कुछ नहीं होगा, सिर्फ डेफर्ड वाला ही डेबिट होगा, और रेंट इनकम तो वही 15,000 से क्रेडिट होती रहेगी, बिकॉज अल्टीमेटली कोई कंसेशन तो हुआ ही नहीं, सिर्फ डेफरमेंट है। ठीक है, तो समझाइए या कुछ न्यूमेरिकल रूल समझाने के लिए, समझ गया? Okay, read question number 2. Lesser M enters into a 10-year lease of office space with lessee K, which commences on 1st April 2015. The rental payment are 15,000 per month payable in arrears. M classifies the lease as an operating lease. M reimburses K's reallocation cost of K of 6 lakh, ओके, which थाम M थाम थाम account थाम 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 देखिए यहाँ पे कौन है, एक एम है और एक कौन है, के K है। है, एम कौन है, lesser, लेसर, और ये कौन है, लेसी। lessee, फाइन, इन्होंने फैसला क्या किया, रेंटल पेमेंट्स कितने होंगे, 15,000 पर मंथ। 15,000. ठीक है, और एम ने क्लासिफाइड द पर्टिकुलर एम ने क्या किया है, किधर गया किधर किधर गया, ये रहा। एम क्लासिफाइड द लीज Classified. एज एन ऑपरेटिंग लीज, ठीक है कोई बात नहीं। एम reimburses केस रिलोकेशन कॉस्ट, तो लेसर है वो क्या कर रहा है, वो 6 लाख का रिलोकेशन, हो सकता है कि के पहले कहीं और फैक्ट्री सेटअप करके बैठा होगा, तो वो रिलोकेशन का कॉस्ट भी कौन बेयर कर रहा है, लेसर बेयर कर रहा है। तो इट क्लियरली मीन्स इफ यू थिंक फ्रॉम लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, वी शुड नॉट से कि ये प्योर 15,000 ही इसकी रेंट इनकम है, रेंट इनकम इसकी ज्यादा है, ये दिखावा कर रहा है। इन शॉर्ट ये बेनिफिट जो अपन अकाउंट करते हैं ना, अपने कंसिडरेशन में ले लेते हैं, ठीक है। विच एम अकाउंट्स फॉर अ लीज इंसेंटिव, इंसेंटिव याद है अपन इंसेंटिव क्या करते थे, इंसेंटिव का द लीज इंसेंटिव इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिडक्शन इन रेंटल इनकम over the lease term using the same basis for the lease income, in this case on a straight line basis over 10 years. On April 2020, during COVID-19 pandemic, I'm agreed to waive case rental payments for May, June and July 2020. 3 महीने का रेंट माफ कर दिया है, waive off कर दिया। This decrease in the consideration is not included in the original terms and conditions of the lease, and there is therefore lease modification. ठीक है? How will we this be accounted by lesser? How would lesser account this? देख, M accounts for this modification as a new operating lease from its effective date. Now again यहाँ पे क्यों ऑपरेटिंग, न्यू ऑपरेटिंग क्यों बन गया लीज, if you see it clearly,
हमारा लीज हमेशा वही आता था, हम पूरा लीज आगे डिवाइड बाय पीरियड करते थे, उसके हिसाब से रेंट इनकम को मानते थे, इनकम लीज इनकम को इनकम मानते थे। प्रीवियस केस में एक्चुअल में रेंट चेंज नहीं हो रहा था, ओवरऑल अमाउंट सेम रह रहा था। यहाँ पे अमाउंट चेंज हो रहा है, वेव्ड ऑफ हो रहा है, तो अल्टीमेटली is as good as we are entering to the new lease, so accordingly we change our system of it. Take happen those that and recognizes the impact of the waiver on straight line basis over 5-year term of the new lease, and also takes into account the carrying amount of the unamortized lease incentive on 8 April 2020 of 3 लाख। ये अनअमोर्टाइज्ड लीज कैसे आया, ये मैं क्वेश्चन तुझसे पूछना चाहूंगा, और तुझे याद आ जाएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अनअमोर्टाइज्ड लीज इंसेंटिव, देख ध्यान से देख, इसका पीरियड कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 15 को। 2015। ओके, अच्छा अगर मैं बात करूं इसका रेंट, जो पैसा रिसीव होगा बैंक में, वो कितना है? 15,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर्स, कितना आता है? 18 lakh। 18 लाख आता है। और अगर मैं बात करूं एनुअल रेंट की, तो एनुअल रेंट कितना आता है? 1.8 लाख पर एनम। साथ ही साथ में डोंट यू थिंक ये जो रिलोकेशन कॉस्ट है, जो इंसेंटिव है, इसको भी अकाउंट करना चाहिए? ये अकाउंट कैसे होगा जरा बताना। इंसेंटिव्स को हम लोग कैसे अकाउंट करते हैं ऑपरेटिंग लीज के अंदर? ये तो तुझे बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा, इतना हिंट तो दे दिया मैंने। बोलो 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 बोलो। नहीं पता। ये रे दीपा, कैसे चलेगा इससे, ऐसे कैसे चलेगा दीपा? देख, मैं हल्का फुल्का याद दिलाने का ट्राई करता हूँ। एक बात बता, जब लेसर जब दे रहा होगा ये, जब लेसर ये पैसा दे रहा होगा और जब ये पूरा ट्रांजेक्शन में एंटर मार रहा होगा, तो लेसर क्या एंट्री मार रहा होगा? लेसर की बुक्स में फर्स्ट एंट्री कौन सी आती है ऑपरेटिंग लीज के अंदर? पैसे जाने की। एसेट जाते हो ऑपरेटिंग लीज में? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। वाह बेटा। लीज इनकम का लीज। ओके, सो ये तो हुआ टोटल which was 1.8 lakh per annum, और in the transaction what happened was 6 लाख का एक इंसेंटिव दिया था, जो किसने दिया था? जिसने अपने इंसेंटिव दिया था, लेसर ने दिया था, किसको? लेसी को दिया था। So in that case, if you take that 6 lakh also, 6 lakh you divide it by 10, you will get the figure of 60,000 per annum. ये भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इसी एग्रीमेंट के अंदर पुश कर दिया जाएगा, प्रिज्यूमिंग कि ये भी पैसा जो है रेंट के माध्यम से वसूली किया जा रहा है, यानी कि जो 7,80,000 मिल रहा है उसके अंदर इसकी भी वसूली अपन कर रहे हैं। वरना एक बात बता, लेसर क्यों चाहेगा लेसर कि वो बेनिफिट देवे या किसी को फ्री में लेके आए कुछ करे? Just because the contract was of 10 years big contract and we didn't want to lose the contract, what we did was we gave him a relocation cost का कुछ खर्चा, which is as good as concession देना रेंट के लिए।
याद है अपन ने क्वेश्चन करते करते बात किया था कि इनिशियली एक बड़ा डिस्काउंट दे दिया, अपफ्रंट कुछ दे दिया, 1 लाख का बोनस दे दिया, तो वो अल्टीमेटली तो वसूली करेगा ना. सो दिस क्वेश्चन से 3 लाख इफ यू सी 1 अप्रैल 15 को अपन ने लीज स्टार्ट किया था, एंड हम लोग जो अमोटाइज करते जा रहे होंगे वो 6 लाख को भी, क्योंकि इनिशियली अपने दे दिया होगा, टू बैंक हो गया होगा वो पैसा, जो कि धीरे धीरे रेंट के साथ साथ वसूली हो रहा होगा. तो कहना है इसे अगर 2020 तक 5 साल बीत चुके हैं, तो कहना है इसे 3 लाख रुपया उस 6 लाख में से वसूली हो चुका है. 60,000 इंटू 5 years विच इज 3 लाख रुपीज. अनअमोटाइज कितना बच गया उस बैलेंस में? 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख बच गया. वो 3 लाख की यहाँ पे ये बात कर रहा है. ठीक है. So unamortized this balance on a straight line basis over 5 year term of the new lease. सिंपल है. ये तो 3 लाख अमोटाइज हो गया, 3 लाख बच गया, बचा हुआ अब क्या होगा? बैलेंस टर्म अमोटाइज हो जाएगा. लेकिन नाउ द रेंट फिगर्स वुड चेंज बिकॉज कुछ महीनों का रेंट अब नहीं मिलने वाला है. तो जो नहीं मिलेगा उसको कंसिडर करने के बाद में विल कैलकुलेट अ स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कि कितना रेंट होना चाहिए. आई होप यू रिमेम्बर स्ट्रेट लाइन मेथड क्या था उसका, ऑपरेटिंग लीज का. फॉर एग्जाम्पल अपने वहाँ ये डिस्कस ऑलरेडी क्या होता था वहाँ पे. सपोजिंग बात हुआ है कि टेनेंट बोलता है मैं फर्स्ट मंथ 10,000 दूंगा, फिर 20,000 दूंगा, फिर 30 दूंगा, फिर 5 दूंगा. तो हमने क्या बोला, भाई तू कैसा भी दे, अगर 4 साल का रेंट है हम डिवाइड बाय 4 करेंगे, बता जरा कितना आएगा? 20, 30, 40, 50, 60, 65. तो 65 डिवाइड बाय 4, 16.25. सॉरी 16.25. 16.25. हम बोला भाई हम तो पर मंथ इतना ही रेंट रिकॉर्ड करेंगे, तो हम तो टू रेंट इनकम 16.25 ही मानेंगे. हाँ, अब तू जिस महीने हमको 10th देगा हम यहाँ पे 10th करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिफर रेंट, बचा हुआ जो बैलेंस आ रहा है 6.25 वहां लिख देंगे. नेक्स्ट मंथ तू 20 दे रहा है, हम बैंक में 20 ले लेंगे, हम रेंट इनकम तो 16.25 का ही मानेंगे, अब यहाँ डेफर्ड रेंट को एडजस्ट कर देंगे. तो इसी तरह से अकाउंटिंग होती है ऑपरेटिंग में. आई होप यू रिमेम्बर. तो जैसे ही यहाँ पे कैश फ्लोज चेंज होंगे, ये जो वर्किंग है, ये वाली वर्किंग वापस करनी पड़ेगी. ठीक है. ऑल्दो थियोरेटिकल क्वेश्चन है एंड ऑलरेडी कवर्ड है क्लासरूम में. जस्ट एक नया पॉइंट जो बताना था वो यही था कि न्यू लिस्ट में एंटर कर दिया जाएगा. पर क्वेश्चन नंबर 3. Lessor L enters into 8-year lease of 40 lorries with lessee M that commences on 1st January 2018. The lease term approximates the lorry's economic life, and no other features indicate that the lease transfer or does not transfer substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of lorries. ठीक है. वो सब नहीं दिया तो कोई नहीं. अपने देखा है कि वी हैव लर्न 5 कंडीशंस. इफ एट ऑल वन इज सेटिस्फाइड वी व्हाट वी से कि वो फाइनेंशियल लीज है. 8 ईयर का लीज था. वो बोलता है लीज टर्म अप्रोक्सीमेट्स द लॉरीज ऑफ इकोनॉमिक लाइफ. पूरा लाइफ इकोनॉमिक लॉरी का वो लेके जा रहा है. मतलब क्या, कौन सा लीज होगा ये? फाइनेंशियल लीज होगा. आगे Assuming that substantially all of the risk and reward incidental to ownership of lorries are ये ले. transferred ठीक है. and classifies as a finance lease. फाइन. आगे During COVID-19 pandemic, M's business has contracted. In June 2020, L and M amend the contract so that it now terminates on December 2020. ध्यान से देख, ध्यान से देख. कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 1st Jan 18. 1 जन 2018. 8 Hmm. साल के लिए. Hmm. मतलब कब तक के लिए? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. मतलब 31 दिसंबर 20 तक का कॉन्ट्रैक्ट था. तो कोविड आया. क्या बोलता है, हम तो पापा खत्म करना चाहते हैं 31 दिसंबर 20 को, मतलब इधर ही बोलता है अब भी खत्म कर देंगे हम.
देख पहले बात कर रहे थे कि 8 साल का जो लाइफ था जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मैक्सिमम लाइफ था एसेट का, पर अब तो कह रहे हैं से 8 साल नहीं, टोटल लीज टर्म से 2 साल का रह गया है। तो कहना चाहिए दिस इज लीज मॉडिफिकेशन, और इस लीज मॉडिफिकेशन से जैसे अपन ने कंडीशंस में वहाँ बात किया था, क्या इस लीज मॉडिफिकेशन से या क्या इस नए टर्म्स की वजह से क्या नया आरओयू एसेट दे रहे हैं अपन? द आंसर इज नो। क्या एक नया प्राइस चार्ज करें? द आंसर इज नो। तो एक नया सेपरेट लिस्ट पर रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये इसी वाले में जाएगा, मॉडिफिकेशन में जाएगा। हम क्या करेंगे, कमिट करेंगे एग्जिस्टिंग लीज को, एसेट वापस अपने पास ले लेंगे और कैरिंग वैल्यू को अकॉर्डिंग एडजस्ट करके एंट्री मार देंगे। आगे बढ़। Early termination was not part of the original terms and condition of the lease, and this is therefore lease modification. The modification does not grant M an additional right to use the underlying asset and therefore cannot be accounted for देख, as जो अपन सीख separate चुके हैं lease. वो ये भी यहाँ लिखे सिखा रहा है अपने को। वो बोलता है नया How कैसे this करेगा will अकाउंट। be accounted? सिंपल है, जो अपन ने सीखा अभी अभी यही स्टेप्स है। ठीक है, एक recognize the finance lease receivable and recognize the underlying assets in its statement of financial position। जो भी एसेट होगा वो पीपी होगा, जो भी होगा उसमें रिकॉर्ड कर देंगे एसेट को। measure the aggregate carrying amount of the underlying asset as the amount of the net investment in the lease immediately before the effective date of deposit। ठीक है, सेम चीज है दोनों की। ठीक है, so it was quite manageable, and if you see from exam perspective I don't consider lesser to be so much important from lesser's point of view, but लेसी के अंदर जो कोविड को लेके जो सारे चेंजेस आए हैं वो लेसी को लेके आए हैं। तो अगर 116 पर टेस्टिंग होता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है, तो एक क्वेश्चन वैसा आ सकता है कि अगर एक्सपीरियंस लेते हैं तो क्या, नहीं लेते हैं तो क्या। लेसर का आई एम दिस टाइम आई एम नॉट थिंकिंग कि आना चाहिए, ऑल्दो आई गेस नवंबर 20 के अटेम्प्ट में सेल एंड लीज बैक वाला क्वेश्चन आया था। जितना मैंने देखा 2-3 दिन पहले पेपर, सेल एंड लीज बैक का क्वेश्चन था। सो एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने तब पूछ लिया, तो अब आई गेस नया अच्छा टेस्ट करने के लिए यही बचता है, विच इज लेसीज बुक का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और एकदम हॉट है। आई डोंट थिंक कोरोना जाने के बाद ये टॉपिक इतना हॉट रहेगा कि तब इस तरह के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछना पसंद करेगा। तो आई गेस दिस इज फर्स्ट एंड द लास्ट चांस टू आस्क दिस, सो दे कैन आस्क। ठीक है, so with this we complete India's 116 in a complete sense, and it is very important। any sort of query if you have with respect to this India, then बताओ मुझे अभी, वरना I would stop this recording right now, right? Don't let me stop it।